Hello students, today we are going to learn a chapter number 5, that is seeds and seeds. Well, actually what are these seeds first of all? तो ये seeds क्या है? आपने देखा होगा आपने बहुत सारी चीज़ें, you may have written many things. For example, you can say mango, obviously apple, then dates. So you might have seen a stony structure inside it. Okay, you might have seen various types of grains, for example wheat, rice and all. So what happens when we put the seed or when we sow the seed inside soil, okay, and when we water it properly, if the soil is very much fertile, then we can find a growth of a particular type of crop of which the seed is. Okay, so now let us study about the seeds in detail. Here Gopal was waiting for his Mausi's family to visit them. They'll be coming up the next day for the holiday. So there was their holiday and they are supposed to come over Gopal's place. So he was waiting. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. So he was thinking about the nice food and all. So he is going to have. Just then his mother called out, "Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowls or katoras of chana or gram." She was going to his bua's house and would return only in the morning. तो मॉर्निंग के अंदर वापस आ जाएगी उसकी मम्मी. तो शी टोल्ड है टू सोक 2 small balls or katora of grams. Okay, but what did Gopal was extra confident, you can say. So what he did, so as you know, Gopal was extra confident. So what he did, as he was soaking the chana, Gopal thought that how would 2 small balls of this be enough. तो उसको लगा कि भाई 2 छोटे छोटे balls 8 लोगों के लिए enough नहीं हो सकते. So he soaked another 2 balls of chana. तो दूसरे 2 balls और भी he soaked. Okay, so when his mother returned the next morning, she saw that chana were overflowing from the vessel. तो she saw that chana, the grams were overflowing. Okay, so when he soaked the chana into the water, the volume of chana expands. Okay, the size expands as we soak the things in water, they expand. Okay, and now how did that happen? Gopal wondered. You soak too much. Anyway, it is good. Now I'll cook half of them and leave the another half to the sprout. तो दूसरे तो थोड़े हैं वो मैं बनाऊंगा और दूसरे स्प्राउट होने के लिए रखूंगी. I can send this to your aunt. तो वो अपने आंट को भेज सकते हैं. Okay, so now the doctor has told her to eat sprout. तो डॉक्टर ने बोला है उसे स्प्राउट खाने के लिए, तो वो उन्हें स्प्राउट खाने के लिए बोला हुआ है. सो नाउ शी टाइड द हाफ सोक चना इन अ वेट क्लॉथ. तो हाफ सोक चना जो थे उन्हें वेट क्लॉथ के अंदर टाई किया एंड हंग द स्प्राउट देम अप टू द स्प्राउट. तो स्प्राउट बनने के लिए उन्हें कहीं पर लटका दिया. व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस. तो आपको एग्जाम यहाँ पे आंसर देने हैं कि कौन सी चीज़. व्हाट आर द थिंग्स ओके इन योर होम आर सोक्ड बिफोर कुकिंग. तो दाल हम सोक करते हैं, क्या क्या चीज़ हम सोक करते हैं वो आपको लिखना है. अंडरस्टूड. नाउ व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग. ओके, हाउ आर दे स्प्राउटेड. तो वो स्प्राउट किस तरीके से होती है. हाउ मच टाइम डज इट टेक. तो कितना टाइम लेती है. हैज़ द डॉक्टर और एनी वन और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट. तो किसी ने बोला है स्प्राउट खाने के लिए आपको do this and find out. Do you remember that in class 4 you did an activity with seeds? So you did some activity with seeds. Now try another one. Take some chana and 3 balls. Put 5 chana in first bowl and fill up with water. Now put a dump piece of cloth or some cotton wool in a second bowl. Now keep the same number of chana in it. So what is supposed to do is 5 chana in water in first bowl. In second bowl what is supposed to do is take some cloth or some cotton and put chana inside the cotton and now soak the cotton in water so that it becomes wet. Now put same number of chanas in third bowl. Do not put anything else. Cover it the 3 bowl. So now you are not supposed to add any water or cloth inside the third bowl and you are supposed to keep it as it is. Okay, cover them all. Now bowl 1,
Are the seeds getting air? No. Bowl 2, yes, they are getting air, and bowl 3, they are getting air. Now, are the seeds getting water? So in first bowl, yes, second bowl, yes, third bowl, no. What changes do you see? तो आपको चेंजेस क्या क्या मिलते हैं? हैव द सीड स्प्राउटेड, तो सीड स्प्राउट हुए. तो स्प्राउट क्या होता है कि जब कोई सीड के अंदर से उसका तना निकल जाता है, उसका मूल निकल जाता है और वो ग्रो करना शुरू करता है, उसे स्प्राउट्स बोलते हैं. इन विच बॉल डिड द सीड स्प्राउट? तो सीड स्प्राउट किस बॉल में हुआ है वो देखो. आपको ये एक्टिविटी करनी है. ओके. व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन द बॉल्स एंड द अदर बॉल्स? तो एक बॉल और दूसरे बॉल्स में क्या क्या डिफरेंस आपने देखा. व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? तो डैम्प क्लॉथ के अंदर चना क्यों टाई किया स्प्राउट्स बनाने के लिए? तो क्योंकि उसे ठीक से हवा मिलती रहे. पानी के अंदर भिगो के रखेगा तो सिर्फ पानी मिलेगा, पर हवा इतनी अच्छे से मिलेगी नहीं. ओके. When you split the whole मसूर you get meat. मसूर को स्प्लिट करते हैं तो हमें मसूर दाल मिलती है. बट then you cannot sprout. बट हम उसके बाद आपको स्प्राउट, आप मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते. कैन यू थिंक वाई? क्योंकि ये डाइकॉट है. ओके. प्लांट को स्प्राउट होने के लिए पूरा सीड चाहिए, आधा सीड होता है तो वो स्प्राउट होता नहीं. नाउ लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग. तो स्प्राउटेड चना आपको देखो और इसकी ड्राइंग बनाओ. नाउ प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स. टेक अ क्ले पॉट और अ टिन कैन विद अ वाइड माउथ. इस तरीके से मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन. तो नीचे एक छोटा सा होल बनाओ. फिल योर कैन विथ सॉइल. तो वो सॉइल से आपको कैन को या आपका जो भी पॉट होता है उसे भरो मिट्टी से. प्रेस देम जेंटली. तो उसे हल्के से प्रेस करो. डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स सच एज मस्टर्ड, मतलब सरसों, फेनुग्रीक मेथी, सीसम तिल, कोरिएंडर धनिया, कुछ भी हम ग्रो कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज सपोज टू डू इज नाउ मेक अ चार्ट ओवर हियर और मेक अ प्लान. नेम ऑफ अ सीड, डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम. यू सपोज टू यू आर supposed to keep a time keeping. Okay, this is called time keeping. The how much time requires. So you need to add the date over here. The day you observe something coming out. So now the day where you find something is coming out from the soil. Okay. Now start filling the table. फिर आप ये टेबल फिल करना स्टार्ट करो. To find the height of a plant, use a thread and then measure द स्केल. तो स्केल को यूज़ करो, थ्रेड को यूज़ करो, थ्रेड से हाइट नापो और फिर आप मेजर कर सकते हो. डेट कौन सी है, उसकी हाइट कितनी है, नंबर ऑफ लीव्स कितने दिखे गए, एनी अदर चेंज, कोई दूसरा चेंज हो तो इस तरीके से पूरा टेबल बनाना है आपको और एक आध महीने तक देखो क्या चेंजेस मिल रहे हैं. नाउ यू सपोज टू आंसर द क्वेश्चंस क्विक. व्हाट आर द क्वेश्चंस? हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर अ प्लांट टू कम आउट ऑफ अ सॉइल? तो कितना टाइम लगा उसे बाहर निकलने के लिए. What was the difference in the height of a plant on the first and second day? So what was the difference between the height? Okay, at what rate it is growing? Now, on which day did the height of a plant increase the most? On which day the height of a plant was increased the most? Okay, it increases at moderate rate, but at some time it increases with a high rate. Okay, so on which day, on the third day or a fourth day of planting, the height was the highest. Okay, the increase in height was highest. So you need to compare the height between the timings of 2 days. Now, did new leaves come out of a plant every day? So did the plant grows new leaves daily? Was there any change in the stem of a plant? So was there any change in the stem? We are supposed to discuss the things. So which seed took the most number of days to stem, for the stem to come out of the soil? So which seed did take most number of days for the stem to come out? Okay, first stem. Now which seed took least days to come out? So which seed was, the growth rate of which seed was higher and which seed was lowest? Which seed did not grow at all? तो कौन सा seed grow ही नहीं किया है? Did any one's plant dry up or turn yellow? तो किसी का plant yellow हो गया या dry हो गया. Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ कि उसे proper number of nutrients नहीं मिलते, इसीलिए वो कुपोषित रह गया. What would happen if the plants do not get water? तो क्या होगा अगर प्लांट को पानी मिलेगा नहीं. Straight from your heart, what is inside the seed? inside के सीड के अंदर क्या है? How did the big plant grow from tiny seed? तो छोटे सीड के अंदर से बड़ा प्लांट किस तरीके से ग्रो करता है. Now think and imagine. Think and imagine. What would happen if a plant would walk? Draw a picture.
ऐसे पिक्चर ड्रॉ करो जहाँ पे प्लांट चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, जैसे आप घूमते हो वैसे प्लांट्स भी घूम सकते हो। जैसे कि वो मूवी है ना, उसके अंदर वो ग्रूट चलता है ना प्लांट, वो पिक्चर ड्रॉ करो ग्रूट का, और क्या। नाउ फाइंड आउट डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड, तो कोई प्लांट है जो सीड्स के बिना ग्रो कर सकते हो, सोचो और लिखो। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसको ग्रो करने के लिए सीड की ज़रूरत होती है। ये क्या है? ट्रैप्ड पिचर प्लांट, ओके, दिस इज कॉल्ड पिचर प्लांट। सो देर आर सब प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो शिकार करते हैं, मतलब ऐसे के ऐसे अपना वो होते हैं घात लगा के बैठते हैं, क्योंकि वो चल तो सकते नहीं, अपनी जगह बदल सकते नहीं है। सो वो बैठेंगे, ये खोल के रखेगा, ये जो इसका ढक्कन नुआ है जो चीज़, ओके, द लीड, इट ओपन्स द लीड एंड हियर इज अ विस्कस लिक्विड filled inside this structure, this vessel thing. Now what happens when the bees enter here? Okay, it smells very good, so the liquid smells very good like honey. So bees, what the bees will be trapped and they will go inside this vessel, and what happens then? This wicked plant closes the lid, okay, it closes the lid, and this bee will be trapped inside. The plant will eat the bee, तो ये प्लांट होगा वो ईट को खा जाएगा। ओके, दिस इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये प्लांट है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, इंडोनेशिया और मेघालय, इन इंडिया मेघालय के अंदर भी पाया जाता है। द पिचर प्लांट इज़ लाइक द शेप ऑफ अ माउथ कवर्ड बाय लीफ, तो ऐसा टीचर जैसा लगता है, घड़े जैसा, और उसका माउथ है वो लीड से, एक लीफ से कवर होता है। प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट, तो उसको बहुत स्पेशल स्मेल होती है जिससे इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ अ प्लांट इट गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। व्हाट क्लेवर वे टू हंट, कितना अच्छा वे तरीका है शिकार करने का। सो मैनी सीड्स, कितने सारे सीड्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड कैन यू कलेक्ट, तो कितने टाइप ऑफ सीड है आप कलेक्ट कर सकते हो। वेर यू फाइंड देम, तो आप कहाँ पे उन्हें ढूंढोगे, कहाँ पे फाइंड करोगे। Each of you should try to collect many different types of seeds you can, तो आप जितने सीड्स कलेक्ट कर सकते हो उतने सीड्स कलेक्ट करो। After that put all the seed collections together, now observe these seeds carefully, तो सारे के सारे सीड्स को एक साथ रखो, सबको देखो और फिर उनके अंदर ऑब्जर्वेशन करो कि क्या क्या फ़र्क है। देयर शेप्स, तो उनका शेप्स में क्या चेंजेस है। साइज़, उनकी साइज़ में क्या है चेंज। कलर एंड टेक्सचर, तो उनका कलर और टेक्सचर क्या है, उनका मतलब कि कलर क्या है, उनका टेक्सचर, उसके ऊपर जो पैटर्न है सीड की वो कैसी है वो आपको चेक करना है। सो दिस आर द स्प्राउट्स, ओके, ये स्प्राउट्स है, आप देख सकते हो का टेक्सचर क्या स्मूथ और रफ, वो स्मूथ है या रफ है। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन अ क्लास, तो आपको क्लास के अंदर रखने के लिए एक सीड चार्ट बनाओ। यू कैन स्टार्ट अप विद अ टेबल लाइक दिस, तो आप इस तरीके से टेबल पे से लिख सकते हो राजमा, कलर, शेप, टेक्सचर, स्मूथ है या कैसा है। ओके, नाउ डिड यू कीप एनी सीड लिखा है सौफ, वरियाली बोलते हैं, ओके, एंड क्यूमिन, जीरा इन योर लिस्ट, ये रखे आपने। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड कौन से थे। विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन योर कलेक्शन, बिगेस्ट सीड कौन से थे आपके कलेक्शन के अंदर। मेक अ लिस्ट। द सीड्स दैट आर यूजुअली यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, तो मसालों की तरह यूज़ होते हैं, उनके बारे में लिखो। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स अलग लिखो। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम, तो कितने हल्के हैं वो। द सीड्स विच आर फ्लैट, जो सीधे हैं वो। मेक मोर ग्रुप्स, और इसी तरीके से आप अलग अलग ग्रुप्स बनाओ, आप अपने हिसाब से डिवाइड करो। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड कैन यू मेक, तो आप ऐसे कितने ग्रुप्स बना सकते हो सीड के। डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड, तो कोई गेम है जो आप सीड्स के साथ खेल सकते हो। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो। ओके, नाउ दिस वेंडरिंग सीड्स and all we will study in our next session because this is called seeds dispersal process, और seed dispersal process के बारे में हम अपने next स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, stay home, stay safe, be healthy, eat healthy।